ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತೇಜಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಿತಾ. ಬೇದರ್ ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗುರುನಾನಕ್ ದೇವ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಿವಂಗತ ಸರ್ದಾರ್ ಜೋಗ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 90ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಗುರುನಾನಕ್ ದೇವ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 17 ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸರ್ದಾರ್ ಜೋಗ ಸಿಂಗ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಂಥರತ್ನ ಶಿರೋಮಣಿ ಸರ್ದಾರ್ ಜೋಗ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಕುರಿತ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಿವೃತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲ, ಪಂಜಾಬ್ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿ ಸರ್ದಾರ್ ಕುಲ್ತಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಧ್ವಾನ್, ರಾಜ್ಯದ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸರ್ದಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿಂಗ್, ಬೇದರ್ನ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮಠದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್ ವಿಕ್ರಮ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಯ್ನಿ, ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಶಾಸಕ ಬಿಗ್ಲಾ ಗಣೇಶ್ ಗುಪ್ತಾ, ದೆಹಲಿಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸರ್ದಾರ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿ, ಕಲಬುರಗಿಯ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಮೈಕಲ್ ಮಿರಾಂಡಾ, ಭಾರತೀಯ ಪ್ಯಾರಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದೀಪಾ ಮಲಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಮರ್ಥ ರಾಘವ್ ನಾಗಭೂಷಣ್, ಬೇದರ್ನ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಜಿದ್ ಬಿಲಾಲ್, ಸರ್ದಾರ್ ಜೋಗ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೇದರ್ನ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾಜಿದ್ ಬಿಲಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ದಾರ್ ಜೋಗ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಕಲಬುರಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎನ್.ಆರ್. ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಲಬುರಗಿಯ ಖಾಜಾ ಬಂದೇ ನವಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಸೈಯದ್ ಶಾ ಖುಸ್ರೋ ಹುಸೈನಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇಡಂ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ನಾಂದೇಡ್ನ ಕಾರ್ಸೇವಾ ವಾಲೆ ಸಂತ್ ಬಾಬಾ ಬಲ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಡಿ ಸಹಸ್ರಬುದ್ಧೆ, ಜನರಲ್ ಸರ್ದಾರ್ ಜೋಗಿಂದರ್ ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯದ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿಂಗ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದಯಾನಂದ್ ಅಗ್ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ನಾನಕ್ ಝೀರಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ ಬಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಮನೋಹರ್ ಇದ್ದರು. ಪಂಥರತ್ನ ಶಿರೋಮಣಿ ಸರ್ದಾರ್ ಜೋಗ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಕುರಿತು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗುರುನಾನಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮೂಹದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೇಷ್ಮಾ ಕೌರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರೆ ಸರ್ದಾರ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ವಂದಿಸಿದರು.
से नहीं 4 दिन पहले से इनके नाम के आगे डॉक्टर लग गया। इनको मक्कमा देवी विश्वविद्यालय से ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है, जिन्होंने वेलकम स्पीच के रूप में बहुत अच्छी जानकारी हमको दी। सरदार जोगा सिंह जी कल्याण कर्नाटक पुरस्कार से सम्मानित सभी महानुभाव, अब नाम लूँगा तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए सभी महानुभाव, सम्माननीय अतिथिगण, नमस्कार, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ हार्दिक अभिनंदनಗಳು। पंत रत्न शिरोमणि सरदार जोगा सिंह जी के 90वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरदार जोगा सिंह जी की कल्याण कर्नाटक पुरस्कार वितरण समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों का मानवता की रक्षा के लिए दिए गए बलिदान की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है। आज ये सारे देश में मनाया जा रहा है। दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ मंत्रीगण, पदाधिकारीगण उसमें उपस्थित रहे। मैं इस अवसर पर उन शहीदों को नमन करता हूं। मैं साहिबजादों के बलिदान को नमन करते हुए आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन जिन महानुभावों ने देश हित में, जनहित में, देश की एकता, अखंडता और देश की सुरक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर किया है, उन सबको याद करके देशवासियों के सामने भी उनको याद रखने, उनका सम्मान करने की दृष्टि से हमसे अपेक्षा की है। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे महापुरुषों को हम समय समय पर, जयंती पर, पुण्यतिथि पर याद करते रहें। कल्याण कर्नाटक क्षेत्र का गौरवशाली इतिहास है। श्री गुरु नानक देव जी ने दूसरी उदासी के दौरान इस क्षेत्र को अपने पवित्र पद चिन्हों से पावन किया था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 5 प्यारों में से एक भाई साहिब सिंह जी का गृह नगर भी यही बीदर है। निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक शहर है और देश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में से एक है। पंत रत्न शिरोमणि सरदार जोगा सिंह जी के पिता पंत भूषण सरदार बिशन सिंह जी द्वारा बीदर में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक जीरा साहिब का निर्माण किया गया, जो पहले सिख गुरु श्री गुरु नानक देव जी को समर्पित है। मुझे इस प्रसिद्ध गुरुद्वारे का 2 बार दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। आज पंत रत्न सरदार जोगा सिंह जी की 90वीं जयंती है। मैं उनको भी नमन करता हूँ। सरदार जोगा सिंह जी की एक दूरदर्शी कर्मठ व्यक्ति थे, जो हर समय, हर तरह से निस्वार्थ सेवा करने के लिए समाज के प्रति प्रतिबद्ध थे। समाज के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें कई धर्मार्थ और शैक्षणिक संस्थान शुरू करने के लिए प्रेरित किया और उनकी सोच को साकार रूप देने के लिए सरदार बलवंत सिंह जी भी और उनका पूरा परिवार इसी मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और एक नहीं अनेक संस्थाएं स्थापित करके उनके द्वारा बताए हुए उद्देश्यों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। मैं पूरे परिवार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उनको नमन करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि और जोश खरोश के साथ वो इसी प्रकार का काम करते रहे। 1972 में पंत रत्न शिरोमणि सरदार जोगा सिंह जी की अध्यक्षता में
श्री नानक जीरा साहेब फाउंडेशन बीदर की स्थापना की गई थी। आज इस फाउंडेशन ने वृहद रूप ले लिया है। अनेक संस्थाओं के माध्यम से समाज सेवा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं। श्री नानक जीरा साहेब फाउंडेशन के अध्यक्ष कन्नड़ राज्योत्सव अवार्डी डॉक्टर सरदार बलवीर सिंह जी को जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और गुरु नानक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की वाइस चेयरमैन श्रीमती रेशमा कौर जी और उनके परिवार द्वारा सरदार जोगा सिंह जी के सपनों को आगे बढ़ाए जाने का जो प्रयास किया जा रहा है उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप लंबे समय से यहाँ बैठे हैं, परंतु मेरी इच्छा है कि कुछ समय और लेकर के आपको कुछ निवेदन करूं। कुछ समय पूर्व ही कर्नाटक राज्य अक्का महादेवी महिला विश्वविद्यालय ने श्रीमती रेशमा कौर जी को डॉक्टरेट की उपाधि दी है। मैं उस कार्यक्रम में उपस्थित था। मैंने मेरे हाथों से उनको सम्मानित किया। इस पर मुझे गर्व का एहसास हो रहा है। निरंतर अथक परिश्रम से इन संस्थानों ने राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है और विभिन्न गतिविधियों में अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। विविध कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों के समग्र विकास, उनमें नेतृत्व क्षमता जागृत करना और व्यवहारिक बनाने के साथ पर्यावरण सामुदायिक सेवा के प्रति जिम्मेदार बनाने का कार्य संस्थानों द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए भोजन, कपड़े, आश्रय, चिकित्सा और मनोरंजन जैसी सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ गुरु नानक देव वृद्धाश्रम भी चलाया जा रहा है। सरदार जोगा सिंह जी की समाज और प्रगतिशील गतिविधियों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें बीदर की सर्वांगीण प्रगति में योगदान देने वाले अग्रदूतों में माना जाता है। ये प्रशंसनीय है। मैं उनको नमन करता हूँ। प्रसन्नता का विषय है कि कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले तथा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्योग, सामाजिक और समग्र आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का गौरव बढ़ाने वाले व्यक्तियों को श्री नानक जीरा साहेब फाउंडेशन द्वारा सरदार जोगा सिंह जी कल्याण कर्नाटक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आज बहुत सारे महानुभावों को इसके अंतर्गत सम्मानित किया गया है। मैं उन सभी महानुभावों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर बैठे हुए बहुत से महान व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो भविष्य में भी अच्छा कार्य करते रहे और दूसरों को प्रेरित करने की कोशिश करते रहे। आज इस उत्कृष्ट कार्य करने वाले महानुभावों को जो सम्मान दिया गया है, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि शेष जीवन में भी वो इसी प्रकार का काम करते रहें ताकि दूसरों को भी अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती रहे। हमारा देश ज्ञान विज्ञान के अध्ययन में अग्रणी होने के कारण विश्व गुरु का स्थान रखता था। हमारी शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परंपरा अति प्राचीन है, जो वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन पर केंद्रित होकर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की भावना से प्रेरित है। निश्चित रूप से हमको भी इस आधार पर अपनी कार्यशैली बनाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा को कौशल और नैतिक मूल्यों से जोड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रतिबद्धता दर्शाई है। हमको इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग देने की आवश्यकता है। मेरा आपसे अपील है कि देश के विकास में आप सब सहभागी बने। आज ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो पूरे समाज और देश में नैतिकता उत्पन्न कर सके और आधुनिक ज्ञान को
मानवीय मूल्यों के साथ जोड़कर धर्म संस्कृति के संरक्षण, राष्ट्र की एकता अखंडता तथा समाज में समता और समरसता को बनाए रखें। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में लागू की गई है। इसमें मातृभाषा में पढ़ाई की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। मुझे इस बात की खुशी है कि कर्नाटक राज्य ने इस नई शिक्षा नीति को देश में सबसे पहले दूसरे राज्यों की तुलना में लागू किया है। प्रसन्नता की बात है कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला कर्नाटक राज्य इस दिशा में अग्रणी होकर के खेलकूद गतिविधियों को भी प्रोत्साहित कर रहा है। सामुदायिक और आर्थिक विकास में साक्षरता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश में साक्षरता की पुरुष और महिलाओं में कमी है। इस कमी को दूर करने की दृष्टि से हमें प्रयास करना चाहिए। आपको मालूम होगा कि पुरुषों की साक्षरता 80% है और महिलाओं की साक्षरता लगभग 70% है। ये जो अंतर है 100% होने में, इसको पूरा करने के लिए हम सहभागी बने, ऐसा मेरा अनुरोध है। इसके साथ ही पढ़ने वाले विद्यार्थी बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट होता है। ये ड्रॉप आउट नहीं हो, इस प्रकार का काम भी संस्था को भी करना चाहिए और हम सब लोगों को भी इसमें ध्यान देना चाहिए। अगले 25 वर्ष की यात्रा नए भारत और विकसित भारत के सृजन का अमृत काल है। इस विकास यात्रा में हमारी सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि श्री नानक जीरा साहेब फाउंडेशन द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं उन्हें आप निरंतर जारी रखेंगे। मैं इससे अधिक कुछ कहने की बजाय मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುನಾನಕ್ ದೇವ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರೇ, ಸರ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ this is one of the most disciplined, best education institutions which is affiliated to the Gulbarga University. And the another credit which is to be given to this institute is the Honorable Minister for Higher Education of Government of Karnataka has inaugurated National Education Policy 2020 from this institution itself at Bidar. The credit of having implemented successful National Education Policy 2020 started with hosting its program in the Guru Nanak Dev Education Society. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಗಳಿಂದ ಇಡೀ ಬೀದರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನವಚೇತನವನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾಯಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ನವ ಕರ್ನಾಟಕದ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪರಾದ ಪಂತ್ ರತನ್ ಶಿರೋಮಣಿ ಸರ್ದಾರ್ ಜೋಗಾ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಘನತೆ ಬೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಜಿ ಅವರು ದಯಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅನನ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪ. ಇದು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಬಲ್ಲಂತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ. 12ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರರು ಈ ನೆಲವನ್ನು ತಮ್ಮ ಧೀಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾವನಗೊಳಿಸಿದರು, ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿದರು. ತರುವಾಯದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುನಾನಕ್ ದೇವ್ಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಈ ಬರದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಪವಿತ್ರ ಜಲಧಾರೆಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿದರು. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಸ್ಮಯದ ಸಂಗತಿ. ಯಾವ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮನುಕುಲದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಣಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದ್ದರೋ ಅದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ವಿಸ್ಮಯಗಳನ್ನು ಕಂಡರಿಸಿದ ಸರ್ದಾರ್ ಜೋಗಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಇಂದು ಈ ದಿನ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ದಾರ್ ಜೋಗಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮಹಾಶರಣರು, ಸಂತರು, ಜಂಗಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು, ಮನುಕುಲದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಸಾತ್ವಿಕರು ಹಾಗೂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು.
ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಜ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಪರಂಪರೆಗೆ ಇಂದು ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಸರ್ದಾರ್ ಬಲ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು, ಶ್ರೀ ನಾನಕ್ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು, ಅವರ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ಇವತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಜೋಗಾ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಮಾಡುವ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥಗಳ ಅಥವಾ ಓಲೈಕೆಗಳ ಕಳಂಕ ಆಗಬಾರದೆಂದು ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಮತ್ತು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಹಿರಿಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಹೆಸರಾಂತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಎನ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದರು. ಆ ಜೂರಿ ಸಮಿತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾನು ಇಂದು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳ ಹರ ಗುರುಚರ ಮೂರ್ತಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಪಡಮಡುತ್ತಾ, Honorable Governor Sir, distinguished awardees and guests, it is an honor for me to present these awardees to this august audience and request the Chief Guest to felicitate the achievers and confer Sardar Joga Singh Ji Kalyana Karnataka Awards 2022. Well friends, awards are all instrumental and they just remind us the achievements that are done by such great leaders like Sardar Joga Singh Ji. If only we can cherish, or we can express our gratitude to Sardar Ji only by cherishing the values and the heritage and the culture that they have imbibed and given to us. By doing so, we can only say thank you and namaskar to Sardar Joga Singh Ji. Bless this world, bless this society. ಗವರ್ನರ್ ಸರ್ಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸರ್ದಾರ್ ಜೋಗಾ ಸಿಂಗ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ सम्मान ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. तो मैं सिर्फ 1-2 मिनट में मेरी बात ख़त्म करूंगा क्योंकि सभी गेस्ट भी है. और तो मैं बलबीर सिंह जी, उनके पिताजी जोगा सिंह के बारे में कितना बोले तो भी कम है. ये हमारे बिदर के लिए एक बहुत बड़ी देन है. जो इनके इंस्टीट्यूशन है, हेल्थ सेक्टर में काम होता है और कई सेवा इनके तरफ से बिदर में हमको मिली है. और बिदर का नाम पूरे हमारे देश में और इंटरनेशनल में हुआ है. जो इनके इंस्टीट्यूट से, कॉलेजेस से जो बच्चे हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में इंजीनियरिंग पढ़ के सर्विस दिए हैं, अवार्ड लिए हैं, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. खासकर रेशमा कौर मैडम जी का, जो हमेशा बलबीर सिंह का साथ देते आए हैं. तो भरपूर सरकार का और हमारा पूरा इस फाउंडेशन के लिए, गुरु नानक जी फाउंडेशन के लिए पूरा सपोर्ट रहेगा. इतना बोलते मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ. जय हिंद. तो पूर्ण और ऐतिहासिक दिन है. आपको पता होगा कि साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य साहिबजादे बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह, जिन्होंने मानवीय अधिकारों के लिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, इंडियन सिविलाइजेशन के लिए, ह्यूमन वैल्यूज के लिए, जिनको 6 साल और 9 साल की उम्र में जिंदा दीवारों में चिन्ह दिया गया आज के दिन. एंड हिज एक्सेलेंसी गवर्नर साहब, हिंदी के एक पोइट मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, जिस कौम के बच्चे यूं दे सकते हैं बलिदान, जिस कौम के बच्चे यूं दे सकते हैं बलिदान, वर्तमान कुछ भी हो, भविष्य होगा महान महान. We are really privileged along with Sandhwa ji to be here. I heard lot about this great historic place where Guru Nanak Dev ji visited. I did seva of a beautiful museum at Gurdwara Bangla Sahib, where we have portrayed that during second Udasi, Guru Nanak Dev ji paid visit to Bidar, and now we have made a holographic show.
but today only we had the opportunity to come here and see how the great visionary Sardar Joga Singh Ji, Panth Ratan, I think such visionaries are born once in a century. Like Reshma ji said, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि तेरी रजा क्या है. A single man, a one-man army, like Shri Guru Gobind Singh Ji said, each Khalsa, each Sikh is not one, he is 1.25 lakh, 1.25 lakh. Panth Ratan Sardar Joga Singh Ji have proven that he was Guru Sikh of Guru Gobind Singh Ji. एक आदमी इतना काम नहीं कर सकता. 5 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंजीनियरिंग कॉलेज और स्किलिंग, एंड आई एम हैप्पी कि सरदार बलबीर सिंह जी एंड हिज डेडिकेटेड illustrious wife Sardarni Reshma ji and their sons and daughter-in-law, who is herself an engineer and mathematics scholar and doing PhD, they are the torch bearer of Sardar Joga Singh Ji, and it is our duty to support them. So on this occasion, I will make 2 announcements. That I had many positions, but Gehlot Sahab knows when he was Minister of Social Justice and Empowerment, and we had set up, Arun Jaitley ji gave us the Swami Vivekananda Drug Rehab Center to be run in Amritsar. I had met him. I was on board of National Skill Development Council for 8 years with the blessings of Honorable Prime Minister. I think today, I told Baba कुलवंत सिंह जी जो जथेदार है नांदेड़ के, मैंने उनको भी बोला कि अब हमने गुरुद्वारों में बहुत सोना लगा लिया, बहुत संगमरमर लगा लिया, अब हमें अपने यूथ को संगमरमर की तरह तराशना है, सोने की तरह जड़ना है, हीरों की तरह संवारना है. ये हमारे सॉलिटर हैं. ये यू आर द सॉलिटर्स, यू आर द यूथ, you are the future of India. So I announce hereby that in consultation with Sardar Balbir Singh Ji, we had a brief discussion with Chancellor Saab. We are running, I have done seva of 5 world-class skill centers. One is in Delhi, opposite Tihar Jail. One is in Amritsar, where Sandhwa Saab was there. We gave jobs to 1,008 youth last Sunday. And CM could not believe. I said, by God's grace, with blessings of Guru Nanak Dev Ji, we will give jobs to 50,000 youth in Punjab, in private sector. Where there is a will, there is a way. Skilling is the way. We have almost 25-30 courses. I take this opportunity to announce setting up of Guru Nanak Dev Ji World Skill Center of Excellence by upgrading the ITI, which is being run by Guru Nanak Dev Ji. I will make a modest contribution of 1 crore rupees from my side, and this center will become the icon of Karnataka. We will take all the approvals from NSDC. Secondly, बलबीर सिंह जी ने बताया कि जैसे सदमा साहब एलुमनाई हैं कि अब पंजाब से कम स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं. I told them we should do more counseling, we should do more mobilizing, but I hereby announce scholarship for 10 engineering students who will come from Punjab. We will pay their fee, I will pay their fee, because we have a fund, Shahid Bhagat Singh Scholarship Fund, because Governor Sahab, I had donated my entire salary of Parliament. When Venkataiah Naidu ji was there, I took a check. He said, what is this? I said, this is my salary. So I have donated my entire salary of 6 years. Plus I have made a matching contribution from my side. And this 6 crore का जो fund है, उसके chairman सरदार कुलतार सिंह संधवा जी हैं. With permission of संधवा साहब, I announce 10 scholarships जिनकी सारी फीस हम देंगे. पंजाब से गरीब बच्चों को 10 ने 20 भी आएंगे तो 20 का भी देंगे. तो ये 2 चीजें, स्किल सेंटर, वर्ल्ड स्किल सेंटर ITI, अभी इस फंक्शन के बाद हम विजिट करेंगे, इसको अपग्रेड करेंगे और बेहतरीन कोर्सेज जो भी आप कहेंगे इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करके विल गारंटी
100% प्लेसमेंट्स हम लुधियाना में बन रहे हैं, जहां 5000 बच्चों को जॉब देंगे। बैसाखी पे सीएम साहब और संधवा साहब उसका उद्घाटन करेंगे। लेट्स बिल्ड ए रिसर्जेंट इंडिया एंड दिस सेंचुरी बिलोंग्स टू अस, टू यू यूथ। एंड लास्ट में मैं यही कहूंगा, अपने न भी ठान लीजिए कुछ भी, इफ यू डिटरमिन समथिंग, कुछ भी ठान लीजिए तो फिर आन होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू। Well, ladies and gentlemen, you would all agree with me that was indeed the history of the family of the Sikhs in Deccan and of the rise of the Nanak Jira Sahib deserves a more detailed volume. I hope some historians from the universities of Karnataka would take up this work, and I look forward to that. This is indeed a great day because we are celebrating the memory of a person who did so much, not only for Bidar, not only for the community, but for the entire Kalyan Karnataka. Thank you very much, sir, for giving me an opportunity to remember my good friend Sardar Joga Singh. Thank you. सरदार बलबीर सिंह जी, आपका धन्यवादी भी हूँ, लेकिन मैडम रेशमा का बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। आज सरदार जोगा सिंह, पंथ रत्न सरदार जोगा सिंह जी की 91st वर्षगांठ है। उनके जीवन को समर्पित ये फर्स्ट एनुअल मेमोरियल लेक्चर आयोजित किया जा रहा है और सर सरदार जोगा सिंह कल्याण कर्नाटका अवार्ड की भी शुरुआत की जा रही है। ये बड़े हर्ष का समय है और मैं इस समय के लिए महामहिम गवर्नर साहब का भी आभारी हूं, क्योंकि यहां पर तो सरदार बलबीर सिंह जी ने तो वही चला लिया था, क्योंकि स्पीकर इज नॉर्मली नॉट सपोज टू स्पीक। ये विडंबना है। स्पीकर का मतलब ये होता है उसने चुप कराना, बोलना नहीं है कुछ। लेकिन मैं आभारी हूं गवर्नर साहब का, जिन्होंने मुझे मेरे को बोलने का भी मौका दे दिया। वो तो है, लेकिन खुद को नहीं बोलना होता था, खुद को नहीं बोलना होता। और इस प्रांत ब्यूटीफुल कर्नाटका के लिए कितना कमिटेड है ये फैमिली। सरदार जोगा सिंह जी की फैमिली, उसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उन लोगों को चुना गया इस अवार्ड के लिए जिन्होंने कल्याण कर्नाटका क्षेत्र के विकास में बहुत योगदान दिया हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ हो, इंडस्ट्री हो, सोशल हो या यहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किया हो। और मैं आश्वस्त हूं कि इस समागम से आने वाले समय में लोगों को समाज के लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी। और मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं, मुझे जो भी कुछ प्राप्त हुआ है वो इस वेदर की लाल मिट्टी से प्राप्त हुआ। सबसे पहले जब मैं आया हूं तो मैंने इस मिट्टी का तिलक किया। इस मिट्टी की वजह से बाबा गुरु नानक जी, उनका हुक्म मेरे पे नाज़िल हुआ। जब हम गुरुद्वारा साहब जाते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, 4 साल में यहाँ रहा हूं, तो वहां पर जब मत्था टेकते थे तो गोलक पर एक तुक लिखी होगी। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की एक तुक ने जीवन बदल दिया है इस नाचीज का। वो क्या लिखा था? बिच दुनिया सेव कमाइए ता दरगाह बैसन पाइए। इसका मतलब यह है, जो दुनिया में लोगों की सेवा करता है तो उसको मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिलता है।
शायद वही हुक्म था कि लोगों की सेवा में लग गए यहां से एजुकेशन लेने के बाद। और बहुत बड़ी विजडम यहां से मेरे को मिली जब गुरु ग्रंथ साहब की महाराज की वाणी में, क्योंकि हम तो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। किसी ने हमारी पसंद का रंग नहीं पहना, उस पर झगड़ा करना शुरू कर देते स्वामी जी। लेकिन गुरु साहब का तो हुक्म यह है, वेद कटेब कहो मत झूठे, झूठा जो न विचारे। वो कहते हैं किसी को झूठा मत बोलो, किसी ग्रंथ को झूठा मत बोलो, झूठा वो है जो उसको विचारता नहीं। और फिर वो कहते हैं जब हार्दिक नमन और एक बहुत बड़ा नमस्कार मेरी ओर से। बहुत बड़ा धन्यवाद देती हूँ बलबीर जी और रेशमा जी का, मुझे इस सरदार जोगा जी की पुण्य स्मृति में दिया गया अवार्ड, उससे मुझे नवाजा गया, क्रीड़ा रत्न मुझे कहा गया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि आज उस भूमि पर मैं ये पुरस्कार ले रही हूँ जिस कर्नाटका की भूमि पे मेरा जन्म हुआ है। मैं फौजी पिता है मेरे, उनका तबादला बैंगलोर में था जब मेरा जन्म हुआ, तो कर्नाटका में यूं लौट कर आना और सम्मान प्राप्त करना, वो भी नानक जीरा साहिब जी के गुरुद्वारे फाउंडेशन के द्वारा। इतनी पावन भूमि है ये और बहुत ही आदरणीय, बहुत ही लोकप्रिय थावर सिंह जी के हाथों ये अवार्ड को पाना, ये शायद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान आई हुई प्रखर नीतियों का नतीजा है कि एक महिला जो 46 वर्ष में शरीर का 2/3 हिस्सा लकवाग्रस्त होते हुए उठती है, खेलती है और भारत की पहली महिला बन जाती है पैरालंपिक का मेडल लाने। इतना दिव्यांग लोगों का सशक्तिकरण आपके नेतृत्व में हुआ, मुझे आज ये मौका मिला है आपको उसका धन्यवाद करने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा जितना भी खेलों का जो मुख्य अंश रहा है वो आप ही के कार्यकाल के दौरान रहा है और जो सक्षमता हमें प्राप्त हुई उसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। मैं अपने अवार्ड को समर्पित करती हूँ। आज वीर बाल दिवस है, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादे की यादगार को आज मैं अपना ये अवार्ड समर्पित करती हूँ। उनके जो उन्होंने अपना न्यौछावर किया अपनी जीवन को देशभक्ति के लिए, मुझे लगता है खिलाड़ी का जीवन भी कुछ इस प्रकार होता है, वो अपना तन मन शरीर पूरा न्यौछावर कर देता है अपने खेल की प्रैक्टिस के लिए, उसकी दिनचर्या में, अपनी देश सेवा में और अपने राष्ट्रीय ध्वज को अंतर्राष्ट्रीय जमीन पर लहराने के लिए। तो बहुत प्रेरणा लेकर मैं यहाँ से लौट रही हूँ। जितने भी यहाँ पे समाज के लोग यहाँ पे जिन्होंने इतना अच्छा कार्य किया समाज सेवा का, उन सब से मैं प्रेरणा लेके लौट रही हूँ और मैं वायदा करती हूँ इस मंच से कि क्योंकि आपने मुझे क्रीड़ा रत्न दिया है, जितना भी मेरा सामर्थ्य है, जितना भी मेरा जीवन है, मैं महिला सशक्तिकरण, दिव्यांग सशक्तिकरण और नन्हे नन्हे बच्चे जो आज सीख ले रहे हैं 4 साहबजादे के सैक्रिफाइस से, उन सब को प्रेरित करूंगी कि देशभक्ति को अव्वल रखें और खेलों से जुड़कर अपने भारत को स्वस्थ भारत बनाएं और एक ऐसा नागरिक बने जो देश के नवनिर्माण और आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपना पूर्ण सहयोग दे सके। ये जो मेरा जो यहाँ से कहना है वो अधूरा रह जाएगा अगर मैं भगत सिंह युवा ब्रिगेड के जसप्रीत सिंह मोंटी का धन्यवाद ना दूं, जिन्होंने मुझे बिदर की पावन भूमि से जोड़ा है। उनकी वजह से मेरा यहाँ आना जाना शुरू हुआ है और उनके नेक कार्य में भी ईश्वर उनको हमेशा शक्ति दे, ऐसा मेरी प्रार्थना है। और इसी के साथ आप सबको धन्यवाद। जाते जाते एक बात कहूंगी कि ईश्वर पे अगर भरोसा deliver the vote of thanks. Today we have with us Honorable Chief Guest, His Excellency Dr. Thawarchand Ji Gehlot, who accepted our invitation
and came all the way from Bangalore to Bidar to grace this occasion. We at Sri Nanak Jira Sahab Foundation feel honored for your gracious presence, sir. I express our deep sense of gratitude to you for the same. Thank you, sir. I am delighted to extend our deep sense of gratitude to Dr. Dayanand Asgarji, Honorable Vice Chancellor of Gulbarga University, Kalapuragai, who has devoted his valuable time to be with us to grace the award ceremony and participate in the 90th birth anniversary celebration of Panchratna Shiromani Sardar Joga Singh Ji. I thank you, sir, on behalf of the Nanak Jira Sahib Foundation. We are extremely thankful to eminent jury comprising Honorable Justice N.K. Patil, former Justice of High Court of Karnataka, and co-chairman of jury Dr. C. Manohar, Chairman, Vision Group, AIMS South India, co-chairman of the jury, and Dr. Balbir Singh Ji, President Sri Nanak Jira Sahib Foundation, and Dr. Rachma Kaurji, Vice Chairperson, Group of Guru Nanak Institution, Bidar, to be the jury member, and it was a hectic task for them to shortlist the awardees, and we are thankful to the member juries for the same. Today, we are proud and honored by the presence of esteemed guests and awardees that made great contribution to the society. Sardar Chiranjeev Singh Ji, IAS, former Chief Secretary, Karnataka State, and former Ambassador, UNESCO, who delivered Sardar Joga Singh Ji Memorial Address today. He had been associated with the founder president for a long time. We express our heartfelt gratitude, sir, for the acceptance of our invitation and delivering a thoughtful, provoking lecture inspired all of us. Thank you, sir. Thank you very much. Our renowned alumni, Honorable Speaker of Punjab Legislative Assembly, Sardar Kurtar Singh Ji Sandwan, and Sri Digala Ganesh Gupta Ji, both have made notable contribution to the people of Punjab and Telangana, respectively, by electing themselves as a member of Legislative Assembly. We are honored to have their invaluable presence in this ceremony. We are extremely thankful to both of them, sir, for making this function successful. Thank you very much, sir. Today, ceremony is ended by the gracious